Thank you very much, Charles, for that introduction, and I want to welcome all of you to Rutgers, and I wish you well in the coming days as you have this fantastic conference lined up. The School of Arts and Sciences was created in 2007. It's actually one of the youngest, the newest academic units at Rutgers, but it's the linear successor of the previous colleges that existed here, Livingston College, Douglas College, and Rutgers College, which trace their history back to 1766. So we're on the verge of celebrating our 250th anniversary, which is a big moment for us. Now, I realize by the standards of Indian civilization, 250 years is not a long time. But like I said, it's a very big moment for us. The School of Arts and Sciences was created in 2007, as I just mentioned, and one of the other great things that happened directly in the aftermath of the foundation of the School of Arts and Sciences was the creation of the Department of African, Middle Eastern, and South Asian Languages and Literatures, or AMISOL. And this gives us an academic opportunity based in the School of Arts and Sciences to promote the language and literature of South Asia. And in addition to promoting the language and literature of South Asia through this newly created Department of AMISOL, we also support the work of the program in South Asian Studies, which brings together scholars from all across the university with an interest in studying South Asian culture and civilization, history, language, and literature. And the School of Arts and Sciences is home to scholars in multiple departments who come together and support the work of the South Asian Studies program. We have scholars in the anthropology department, in the religion department, in the history department, in the linguistics department, and others as well who have a particular research focus on South Asia. So we're very proud of this group of scholars. We're very proud of our commitment to studying South Asia, and we welcome you to this conference today. Thank you. Thank you so much, Dr. Mescal, and congratulations for your upcoming anniversary celebrations. Congratulations. Now I would like to invite Asher. Thank you. शाहीन जी आपका इंट्रोडक्शन के लिए मेरा नाम एशर गर्टनर है और जैसे उसने बताया था मैं साउथ एशियन स्टडीज प्रोग्राम का डायरेक्टर हूं और मैं आज आप सबका साउथ एशियन स्टडीज प्रोग्राम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। आप तो जानते होंगे कि न्यू जर्सी में 3 लाख से ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं। इस साल से पहले मैंने इतना लोग रहते हैं ये कभी नहीं सुना था, लेकिन सुनने के बाद मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। इस प्रदेश में जहां भी मैं जाता हूं, चाहे दुकानों में, चाहे रेस्टोरेंट्स में, सड़क पर या इस यूनिवर्सिटी में, मैं हिंदी भाषा सुनता रहता हूं। 3000 से ज्यादा इंडियन हेरिटेज विद्यार्थी रटगर्स में पढ़ते हैं और जहां भी आप कैंपस पर जाओगे वहां आपको हिंदी सुनने को मिलेगी, चाहे वो बॉलीवुड गाने हों जो विद्यार्थियों के आईपॉड्स पर बजती है, या लड़कियों की गपशप हो जो वो हिंदी में करती हैं ताकि उनके आसपास लड़कों को पता न चले कि वो उनके बारे में बात कर रही है। इससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हिंदी हमारे करिकुलम में बहुत चलती है, डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन, मिडिल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन लैंग्वेजेस में और साउथ एशियन स्टडीज प्रोग्राम में। रटगर्स का हिंदी प्रोग्राम बहुत ही मजबूत है और वो बढ़ता भी जा रहा है। इसको लेकर मैं बहुत खुश हूं। I'm very proud of the Hindi language program at Rutgers and our very strong South Asian program more generally. और आप कल इसके बारे में और सुनूंगा मेरी तरफ से, क्योंकि पहले पैनल पर ये मेरा विषय होगा।
हो सकता है कि रटकर्स वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जिसमें हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसीलिए जब डॉक्टर परवीन ने मुझे बताया था कि रटकर्स को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजन करने का मौका आया तो मैंने हिचकिचाया नहीं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। I'd like to simply thank those who helped make this event possible, in particular Martine Adams, our very able assistant to the South Asian Studies program. Martine is here somewhere. I'd also like to express my sincere thanks to Michelle Smith, who is the coordinator for the Rutgers Student Centers, who helped make this space and tomorrow's space work very smoothly. Also my Dean, Jim Michelli, who joined us tonight and continues to provide support to the South Asian Studies program. And to Joanna Regulska, who I'm about to introduce. It's my great privilege to introduce Joanna. She's the Vice President of International and Global Affairs at Rutgers. She's responsible for the university's internationalization efforts, including global education, programs, relations, and services. She's also a professor in the Department of Geography as well as in Women's and Gender Studies. Professor Regulska has over 30 years of international experience in higher education, and she's developed and led large-scale educational programs and projects that have transformed institutions. She's established new degree programs and collaborative partnerships, and she substantially improved the delivery of internationally focused services for students and faculty here at Rutgers for many years. Professor Regulska received the Presidential Award for Distinguished Public Service in 1996 from Rutgers. The President of Poland recognized her contributions to democracy building and empowerment of women by awarding her the Cavalier Cross of the Order of Merit from the Republic of Poland in 1996. Last year, Professor Regulska was awarded the nearly 100-year-old Commander's Cross of the Order of Polania Restuta, which is the highest civilian merit awarded by the government of Poland among a citizen or a civilian. Professor Regulska has been a steadfast supporter of South Asian Studies at Rutgers, and last year she helped launch a new strategic initiative on India here at Rutgers that is housed within the South Asian Studies program. It's my honor to invite Professor Regulska to the stage to welcome you all today. Thank you. Good afternoon, everybody, and thank you so much for coming to Rutgers. Thank you so much for choosing Rutgers to be here. We are indeed very, very proud of our South Asian initiative, and especially the India initiative that Professor Gertner just spoke about. Today we are to celebrate the second, I understand, conference in International Hindi Conference, and to acknowledge the study, the use, and understanding of Hindi language. And I apologize, but my knowledge of Hindi language is zero. So I hope you bear with me when I was speaking in English. I also wanted to welcome several guests. General Counsel Malay, and I see just that our dear friend Chibukula just came to join us here also. As you know, Rutgers is very old, and indeed, as Dean Michelli just mentioned, we're going to celebrate the 250th anniversary. In fact, we are the 8th oldest college in the United States. But we're also one of the very large, and among the public universities, one of the largest. We have over 65,000 students. We offer over 100 different programs. We have 32 different schools, ranging from School of Arts and Sciences, which is the host today, to a variety of professional schools, engineering, journalism, and so forth. We are a research university, which means that we are the member of the American Association of Universities. This is a small 62-member organization bringing the most research-oriented institutions.
Rutgers over the last few years have focused on strengthening and expanding variety of international programs. And I'm very proud to say that India is one of our 5 focus countries, along with China, Indonesia, Liberia, and Brazil. My position in my office, the Center for Global Advancement and International Affairs, is actually relatively young. We were established in 2011. And over the last few years, we tried to build strengthen the mission, international mission of university, but also bring together a variety of units and help through a variety of programs and initiatives grow of our international programs. Last year, we received one of the highest awards in the United States for comprehensive internationalization, the Paul Simon Award for international comprehensive internationalization. And we are very proud of that because that's, in a certain way, it's sort of a seal of approval that what we're doing internationally is really actually pretty good. So we feel very, very good about that. Also last year we were ranked very highly by the Center for World University Rankings. We are ranked now by the Center as a 33rd university worldwide among the thousands of universities around the world, and the 24th in the United States. A lot of this ranking has actually to do with something that happened to Rutgers in 2013, and that is we went through the major integration, probably the largest integration in the history of higher education in the United States, by integrating 8 units, medical, clinical, health units across the state of New Jersey. So those number is partially because now we're one of the very few, actually, land-grant universities, public universities in the United States, where we have a very comprehensive offering, as I pointed out. But let me talk briefly about what's our relationship with India, because obviously that's something the most of interest to you. New Jersey, as you know, probably majority of you live in New Jersey, is a home to over 300,000 Indian Asians, and that's the population that grows, and we are here in the center of New Jersey. In our attempt to deepen relationship with Indian higher education institutions, we have signed a variety of agreements and letters of intent to build a stronger partnership. So just recently, we have signed the agreement with the India Council for Cultural Relations, and we're looking forward to bringing an Indian scholar here to Rutgers to spend with us time and teach, but also interact with the academic community. This is something that not a lot of universities do in the United States, and we're actually very proud of having that relationship. We have signed an agreement with India Institute of Technology of Bombay. We work very closely with the Tata Institute for Social Sciences, with the International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials. Those are our engineering colleagues, and many, many other institutions in universities across the country. In 2013-14, and now we are in 14-15, over almost 1,000 students from India has been studying at the various degrees here at Rutgers, at the undergraduate, master's, and PhD. And we host about 140 scholars from India who come for sometimes a couple weeks, sometimes for a month, sometimes for several months. Those are the scholars who come to do the research, collaborate with our faculty in our research centers. As was already mentioned, the India initiative is very important to us, and when we work with Professor Gertner to set up this initiative through the grant program that my office offers, we wanted to specifically focus on developing stronger partnership with the university, increase faculty mobility, increase students' mobility to make sure that both Indian students come and study here, but also that our Rutgers students go
go and study in India. I was mentioning earlier to my colleague that this is my India week because just a couple of days ago, Robert Wood Johnson Medical School had a seminar on the mental health in South Asia. And one of our colleagues, Sunanda Gaur, leads the whole initiative on South Asian Total Health Initiative. Sati is extremely active and energetic across the state of New Jersey, working on numerous of health initiatives, working with women, working with children. And this conference the other day was attended by New Jersey Commissioner of Health. So this just gives you a little sense of wide range of the activities that we do. We already mentioned AMESO, and there's many, many others. There's one more that I want to mention before I leave the stage, and that is that a couple years ago when new initiative between the President Obama and President Sin was, Prime Minister Sin was created, the Obama Sin Initiative for Knowledge, 21st Century Knowledge Initiative. Rutgers was one of the first university which received the grant in the very, very first round, and that was the grant with the Tata Institute for Social Sciences. The grants focus really on workforce, and what is it that we need to do to educate, provide skills and knowledge to the young generation so that they can move forward. So this is important for both of our countries. We have a lot of young generation eager to learn, but we also need to provide them with specific skills so they actually can get the jobs and move professionally in their career. So thank you so much for joining us here at Rutgers, and I want to take this opportunity and give something to the Council from Rutgers. So if I may join you on the... Thank you so much, Professor Regulska, Professor Maskelly, Professor Parveen, and of course Professor Gertner for hosting and welcoming the Indian community at the Rutgers campus and embracing Hindi so very well. Thank you so much for that. यहाँ से आगे अब मैं मित्रों बताना चाहूँगा कि हिंदी संगम फाउंडेशन को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन मुमकिन करने में बहुत सी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें सर्वप्रथम भारतीय कौंसलावास न्यूयॉर्क में कौंसल जनरल मूले साहब का तो रहा ही है, व्यक्तिगत स्तर पर भी रहा है, कौंसलावास के स्तर पर भी रहा है, क्योंकि वो स्वयं हिंदी भाषी हैं, कवि भी हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त भारतीय विद्या भवन यूएसए का भी योगदान सराहनीय है। मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दीपक दवे जी को, भारतीय विद्या भवन की ओर से वो मंच पर आएं, हिंदी के प्रति जो अपने भाव हैं व्यक्त करें, और उसके साथ साथ हमारे अगले जो स्पीकर हैं डॉक्टर नवीन मेहता, उनका परिचय दें। डॉक्टर दीपक दवे जी, भारतीय विद्या भवन यूएसए से। नमस्कार। सबसे पहले आप सबसे माफी चाहता है कि न्यूयॉर्क से आने में बहुत देर होगी और फिर रटगर्स में बार बार आने के बावजूद ढूंढते ही रह जाऊंगे, ऐसा हो गया। लेकिन यहां जब मैं देखता हूं मूले साहब की प्रेजेंस, the other day Chikula ji spoke in Hindi in TV Asia, was really amazing। मैं अभी इंग्लिश में शुरू हो गया, लेकिन after years Hindi classes of Bharati Vidya Bhavan was very popular, and Bradley is one of our students. He speaks wonderful Hindi, and he is here, and that's really very heartwarming। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं पहले डॉक्टर जयरामन जी ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए ज्यादा करके लोग परिचित तो होंगे डॉक्टर जयरामन के नाम से।
और डॉक्टर साहब ने हिंदी के लिए 14 साल की उम्र से काम शुरू किया। दक्षिण भारत से आए हुए गांधी जी के हाथों जिन्होंने सर्टिफिकेट पाया। और बहुत कम लोगों को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका हिंदी नाम नहीं था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was known, even written in Hindi, like Reserve Bank of India. In 1976-77, with the initiative of Dr. Jayaraman and support of Governor I.G. Patel, the name was changed to Bharatiya Reserve Bank. That is Dr. Jayaraman. द्वितीय अमेरिकी प्रादेशिक हिंदी सम्मेलन में भाग लेने वाले भाइयों और बहनों, आज के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में दो शब्द बोलते हुए मैं गदगद हो रहा हूं। ये डॉक्टर साहब के शब्द हैं। अपनी कुछ निजी विवशताओं के कारण मैं सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं रह पाया हूं, तदर्थ मैं क्षमा चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर से आप विद्वान लोग भारत की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के व्यापक प्रयोग और तदनुकूल भाषा स्वरूप की संभावनाओं और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इस विचार विमर्श की भूमिका में आज से लगभग 150 साल पहले हिंदी के पुरोधा साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई निम्नांकित महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां याद आती है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय की सूल। भारतेंदु जी की इस कल्पना को साकार करने की दिशा में यह सम्मेलन प्रयत्नशील है। आइए हम सब मिलकर वही प्रयास करें जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने 100 साल पहले कहा था। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचार करें मिलकर ये समस्याएं भी। हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग के संदर्भ में आने वाली चुनौतियों पर आप विद्वान बंधु इस त्रिदिवसीय सम्मेलन में जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसके परिणाम तथा निष्कर्ष अतिशय सार्थक और उपयोगी सिद्ध होंगे। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। धन्यवाद। डॉक्टर जयरामन। भारतीय विद्या भवन में अब हिंदी तो डॉक्टर साहब 81 से ही सिखा रहे थे। फिर आफ्टर सम इयर्स कॉन्सुलेट में वो क्लासेस शुरू हुए। क्लासेस इतने पॉपुलर हो गए, डॉक्टर साहब के जाने के बाद भी उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही चालू है। और अब हमारे अंबालिका मिश्रा जी उसकी गति आगे बढ़ा रहे हैं। हमने साथ साथ में बच्चों को कल्चर कोर्स सिखाना शुरू किया है, जो हिंदी में हमारी भारतीय विद्या भवन की किताबें हैं और डॉक्टर जयरामन की टेक्स्ट बुक है, उसको मिला के, और उसमें ये पूर्व भूमिका इसलिए मैं बांध रहा हूं कि उसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेकर, when he was not a chairman, when he was a chairman, and when he is the president of trustee committee, he takes personal initiative. He keeps the track of all the activities. ज्यादा लंबा परिचय में डॉक्टर नवीन मेहता का दूं तो शायद आप लोग उसमें कुछ और ऐड करेंगे, लेकिन ही इज अ रिनाउंड फिलैंथ्रोपिस्ट। बट जैसे हिंदी में कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी, भारतीय विद्या भवन की रीढ़ की हड्डी डॉक्टर नवीन मेहता, प्लीज। आप सबको नमस्कार। मूले साहब, शिवकुला साहब, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वतन, हम सफर, हम राही, हम जोए, हम दर्द, जो भी नाम से मैं आपको पुकारूं, आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा के लिए जो शब्द बोले हैं और कहे जाएंगे, वो 3 दिन तक हम सुनते रहेंगे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और भारतीय विद्या भवन के प्रयासों से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा हिंदी
की ध्वनि 2007 में संयुक्त राष्ट्र के संघ के परिसर में पहली बार उद्घोषित हुई थी। भाषा, कलम, कविता की शक्ति को हमारे महान कवि नीरज जी ने कहा है, घर कलम न छीनी गई तो, घर कलम न छीनी गई तो हिंदुस्तान बदल कर छोड़ूंगा, इंसान है क्या मैं दुनिया का भगवान बदल कर छोड़ूंगा। ये नीरज जी ने बताया है कलम के लिए, भाषा के लिए। हिंदी है क्या? अपने एक महान कवि पीपी सिंह साहब ने बात बताया है, कबीर की साखी, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई हूं मैं, सूरदास की भक्ति की वंदना, बच्चन की रुबाई हूं मैं, प्रेमचंद्र की प्रेम पची से, मैथिली जी की यशोधरा, उर्दू अरबी की आपा और भारत मां का प्यार हूं मैं। वो है हिंदी हमारे। जब आप भारत का देखिए जो उसमें बिंदी लगी है, वही भारत, वही अपनी भाषा, वही मातृभाषा है। हमारे काउंसलर माननीय श्री मूले साहब ने बताया अशोक जी को कि यदि आप ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कर रहे हैं तो भारतीय विद्या भवन को जरूर से आप आमंत्रण कीजिए। हमने कहा तो हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं। वही तो कर्तव्य है भारतीय विद्या भवन का कि अपनी संस्कृति, अपनी कला और अपना साहित्य कैसे सारे विश्व में हम फैलाएं। हिंदी हमारे लिए सिर्फ भाषा नहीं है, मां भारती के माथे की एक बिंदिया है, अपनी सांस्कृतिक गौरव का प्रतिमान है। ये सम्मेलन एक सारस्वत यज्ञ है। इस यज्ञ में संपादन में, काउंसिल आवास के प्रयास में हम सब सहयोगी हैं और हाथ बटा रहे हैं। उसके लिए हम अशोक ओझा के बहुत बहुत ही धन्यवाद प्राप्त करते हैं। इस महान साधना को सफलता का रूप देने का कार्य बड़ा मुश्किल है। मेरा मानना है मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किलों से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, धर्म की राह मिलती है बड़ी मुश्किल से, फर्ज की याद आती है बड़ी मुश्किल से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबके सहकार और प्रभु कृपा से ये भाषा, ये यज्ञ जरूर से सफल होगा। भाई श्री अशोक ओझा को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। यही बताऊंगा अंत में, अभी तो 3 दिन है, सुजलाम सुफलाम मलयम शीतलाम यश्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक बहुत ही सकारात्मक सोच आपकी ओर से और एक अलग ऊर्जा और एक अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा नवरंग डांस एकेडमी की इंस्ट्रक्टर भी हैं वो और बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दिदिति मित्रा को कथक नृत्य के लिए, और उनके साथ हैं अनिर्बन रॉय चौधरी। दिदिति जो है मंच पर नहीं बल्कि स्वयं इधर यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। कथक में उनकी एक अलग ही जज्बा है और अनिर्बन जो है तबला पर होंगे। दिदिति सोशियोलॉजिस्ट भी हैं और साथ साथ कथक नृत्यांगना है। और अनिर्बन रॉय चौधरी जो हैं, he is a student of Ustad Allah Rakha and Zakir Hussain ji from his childhood. He has played with the Grammy Award winner Vishwa Mohan Bhatt ji, Dr. L. Subramaniam and many other legendary musicians across the world. Anirban has received the Young Musician Award of the year 2014. जोरदार तालियों में स्वागत अनिर्बन का और दिदिति मित्रा जी का।
Look here. Okay. I think I heard that noise going through your speaker is just really low, so I'm going to higher. Yeah, we have any meeting. Sound can never get it.
मित्रों, आप सब भारतीय परंपरागत शास्त्रीय संगीत का अपने और नृत्य का आनंद लिया और बहुत ही आपने धैर्य के साथ यहाँ पर आप सब बैठे रहे, इसके लिए धन्यवाद। आप जानते हैं कि उद्घाटन समारोह की जो पराकाष्ठा है वो हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राजदूत श्री ज्ञानेश्वर मूले जी के भाषण के साथ होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा समय और चाहता हूँ इसके पहले कि हम अपने कौंसल जनरल को बुलाएं। हमें कुछ और लोगों से आशीर्वाद लेने की बहुत आवश्यकता है और इस कार्य में खास तौर से जिनके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप सब लोग क्षमा करेंगे एक संक्षिप्त संदेश के लिए जो कि प्रारंभ करें हमारे भारत से आए हुए डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद येरला गड्ढा जी, उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र गंभीर जिसे हम अनुरोध करेंगे और फिर हमारे भूतपूर्व असेंबलीमैन श्री उपेंद्र चिकुला जी और अंत में, हालांकि वो इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन गैब्रिएला जी इस सम्मेलन के बारे में 2 शब्द कहेंगी, जिसके बाद हम आपके समक्ष अपने आदरणीय मूले साहब को प्रस्तुत करेंगे उद्घाटन भाषण के लिए। तो इतना हमें समय दीजिए, मैं पूरी आशा करता हूं कि यह सब कुछ बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आज का कार्यक्रम अपनी परिणति तक पहुंचेगा। सो डॉक्टर येरला गड्ढा जी। देवियों और सज्जनों, भारत में निर्णायक केंद्र अलग होते हैं, लेकिन असली केंद्र तो केंद्रीय कक्ष भारतीय संसद, सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट, और उसके आधे किलोमीटर दूर पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इन दोनों जगह ही की पर्दे के पीछे के सभी विषय होते हैं। 4 महीने पहले अशोक जी और मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं, तो उनकी समस्या अलग है और मेरी समस्या अलग है। उनकी समस्या है हिंदी को कैसे विश्व भाषा बनाए, मेरी समस्या है पहले भारत को कैसे भारत की भाषा बनाए। क्योंकि 2007 में विश्व हिंदी सम्मेलन यहां संपन्न हुआ है, अब भी मुझे डॉक्टर करण सिंह जी का वह ओजस्वीपूर्ण वक्तव्य मेरे कान में गूंज रहा है। और 2014 में परम आदरणीय मूले जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, अशोक जी और उनके सभी मित्रों के नेतृत्व में सम्मेलन हुआ है। वो सम्मेलन 2007 में हुआ है, तो 2014 में प्रथम सम्मेलन हुआ है, 7 साल बाद। लेकिन मूले जी की संकल्प और ओझा जी के जो दृढ़ चित्त जो है, इसका उनके मित्रों के कारण दूसरे ही साल यह संपन्न हो गया है। लेकिन मैं आप सबसे, जो हिंदी मातृभाषी प्रांत से, जो कुरुक्षेत्र से, जो दिल्ली से जो आए हैं, आपसे मैं एक विनम्र निवेदन यह करता हूं, आप अपना दिल खोलिए। विंध्या के नीचे भारत है, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती नहीं दिखाई देती है, लेकिन भावना है। इस त्रिवेणी संगम को हम पवित्र की दृष्टि से पूरे भारत के हर एक भारतीय समझते हैं। अब भी दक्षिण के कोने कोने से जो अपने पितृ पितामह के जो अस्थियों को लेकर गंगा में, यमुना में, त्रिवेणी संगम में हम मिलाते हैं। लेकिन 3 नदियों की इतनी पवित्रता है, तो नीचे कन्याकुमारी में 3 सागरों का संगम है, उसको भी देखिए, उस पर भी आप नजर डालिए। और जिन सभी कबीर और सूर, सभी के तुलसीदास के बारे में, जयशंकर, प्रेमचंद आदि जी के बारे में बताया गया है। लेकिन संपूर्ण हिंदी साहित्य के, भक्ति साहित्य के मूल में रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य सब विंध्या के नीचे आए हुए हैं। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि जब तक हिंदी साहित्य के पाठ्यांशों में उत्तर भारत में मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत का, कनाडा के शैलजा सक्सेना का, शरण घई का और फिजी का, पूरे विश्व के जिन देशों में हिंदी साहित्य का सृजन हो रहा है और दक्षिण में हिंदी तर प्रांतों में भी हिंदी साहित्य का सृजन हो रहा है, उनके विषयों के, उनके कविताओं का भी अपने हिंदी प्रांत के पाठ्यांशों से छोटा सा जगह आप देंगे तो पूरे भारत की भाषा बनेगी और राष्ट्रीय एकता होगी और इससे होगी। मैं केवल, और परसों ही बात करने वाले हैं और एक विषय पर ज्यादा बहस तब करेंगे, एक ही मैं आपसे बताकर आपसे विदा लेता हूं।
मानवता है यहाँ कहाँ, अरे यह गूंगे पशुओं की जमात है, हा सज धज कर कहीं जा रही जिंदा लाशों की बारात है। ये पंक्तियां हैं दक्षिण के हिंदी चंदमामा के व्यवस्थापक संपादक आलूर बैरागी की पंक्तियां हैं। अगर हम ये कवि की नाम नहीं बताएंगे तो आप कह सकते हैं कि किसी प्रगतिवादी कवि की पंक्तियां हैं। पंख लगा दो बाहों में, उड़ जाऊं मैं नील गगन में, लेकर तुझको प्राणों में, स्वर गंगा के अमीय धार में, स्वर्ण तरी पर सो जाएंगे, नंदन वन के कुसुम कुंज में परवश होकर खो जाएंगे। हमारे चूकल उपेंद्र जी 20 साल से मेरे परम मित्र है, हमारी मातृभाषा दोनों एक है। हमारे गुरुवर आंध्र विश्वविद्यालय के हमारे गुरुवर आचार्य राव जी की ये पंक्तियां हैं। अगर कवि की नाम नहीं बताएंगे, प्रांत नहीं बताएंगे तो आप समझते हैं कि किसी छायावादी कवि की कविता है। इसलिए अनोखा साहित्य है। उत्तर भारत के बाहर, उत्तर भारत के नीचे, उत्तर भारत की इस बगल में, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी साहित्य है, हिंदी प्रेमी है, हिंदी सेवी है। उन सबको भी आप दरवाजा खोलकर, अपने दिल का दरवाजा खोलकर अंदर बुलाइए, तब विश्व भाषा बन जाएगी हिंदी। जय हिंद। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र गंभीर। आदरणीय मुले जी, आदरणीय चिविकुला जी, भाई और बहनों, बहुत कुछ सुनेंगे आप हिंदी के बारे में। एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, बस यही 2 शब्द कहना चाहता हूं। जितने माता पिता यहां बैठे हैं वे सब द्विभाषी हैं, एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं या मराठी बोलते हैं, साथ अंग्रेजी बोलते हैं, कोई तीसरी भाषा भी जानते होंगे। आपके जो बच्चे हैं वो आपसे एक कदम आगे होने चाहिए। उनको एक भाषी मत बनाइए, कम से कम 2 भाषाएं जरूर सीखें वो। और हिंदी मैं समझता हूं भारत से संबंध बनाने के लिए, अपने परिवार से संबंध सुदृढ़ करने के लिए, अपनी संस्कृति से संबंध स्थापित करने के लिए हिंदी एक बड़ा अच्छा विकल्प है उनके लिए। लेकिन कोई और भाषा भी चुने अगर आप किसी कारण से तो चुनिए, लेकिन अपने बच्चों को द्विभाषी कम से कम जरूर बनाइए। ये आपसे निवेदन है ये बिल्कुल। और ये एक बहुत ही अनायास काम हो सकता है। आप बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ हिंदी बोलिए, वो हिंदी सीख जाएंगे। वो कोई खास और बात करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा प्रयत्न, और बहुत से लोग हैं यहाँ पर, बड़े विद्वान हैं यहाँ लोग, जो आपको बता सकते हैं कि बच्चों को हिंदी कैसे पढ़ानी है, कैसे सिखानी है, उनको द्विभाषी कैसे बनाना है, इसके बारे में आपको अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन ये एक निश्चय जरूर कीजिए आप कि अपने बच्चों को आप अपने से एक कदम आगे ले जाएंगे, अपने से कम नहीं होने देंगे। ऐसे संस्कृति बढ़ती है, ऐसे जीवन बढ़ता है, ऐसे समाज बढ़ता है। तो ये आपसे एक विनम्र निवेदन है, इसके बारे में विचार कीजिए। नमस्कार। जिनकी प्रेरणा से ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2014 में प्रारंभ हुआ, हमारी सहयोगी मित्र आदरणीय डॉक्टर गैब्रिएला निक इलेवा जी, कृपया आप अपने 2 शब्द कहें। नमस्कार। हमने बात की इस सम्मेलन से पहले कि मैं बात नहीं करूंगी आज, क्योंकि काफी लंबी शाम हो गई और पीछे हमारे दोस्त भी हैं, तो वे पूरी तरह हिंदी नहीं समझते हैं। तो क्या करें, मेरे पति भी वहाँ बेचारे बैठे हुए हैं, मुझे हिंदी में बोलना चाहिए। तो आपका स्वागत है यहाँ। मुझे बड़ी खुशी है और गर्व है कि हमने
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ तक लाया है और आगे चलकर आशा है कि कुछ और काम करेंगे और कि तीसरी कॉन्फ्रेंस, चौथी कॉन्फ्रेंस देखेंगे कि कितने हो सकते हैं। जितनी हमारी जिंदगी और हमारे बच्चों की जिंदगी लंबी होगी, इतनी हमारा काम यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, शुक्रिया। हमारे परम मित्र और साथी न्यू जर्सी, आपने हमें मजबूर किया कि उसके पहले मैं भूतपूर्व लगाऊं, लेकिन मन नहीं होता। असेंबलीमैन और वर्तमान कमिश्नर श्री उपेंद्र चिवकुला जी। आदरणीय मूले जी, मान्य अतिथियों, मेरे मित्र यर्लगड्डा जी, डॉक्टर यर्लगड्डा जी और भाइयों और बहनों, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी मातृभाषा है तेलुगु, लेकिन ये तो भारतीय देश भाषा है, देश की भाषा है, इसलिए उसमें हिंदी सीखना बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैंने जब हिंदी एजुटेशन चल रही थी मद्रास में, वही टाइम पे मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में जाके मैं हिंदी सीखा और यहाँ अमेरिका आके 40 वर्ष हो गए हैं और यहाँ हिंदी मेरी प्रैक्टिस यहाँ हिंदी में बात करने के लिए बहुत मौका मिली है। लेकिन मैं अभी मुले साहब की पहले मैं बात कर रहा हूँ, वो तो एकदम हिंदी में भाषण दे सकते हैं, वो कवि है। मैं तो छोटा सामाजिक सेवक हूँ यहाँ 40 साल से, और 13 साल मैंने न्यू जर्सी MLA बन के रहा था। अभी मैं कमिश्नर बन गया हूँ, लेकिन ऐसा है कि जो भी भाषा सीखना है तो उसमें गलती हो जाती है, क्योंकि हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग है, पुंलिंग है, नपुंसकलिंग है, कभी कभी मिक्स कर देते हैं। इसकी फिक्र नहीं करना, क्योंकि भाषा ऐसी है कि आपको जहां आप प्रैक्टिस करेंगे अब सुलभ हो जाती है। तो मैं 2-3 बात कहना चाहता हूं कि रटगर्स में तो करीब 20% साउथ एशियन इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो ये ऐसा है कि साउथ एशियन स्टडीज प्रोग्राम डीन मस्कली है और प्रोफेसर रघुस्का अभी चले गए हैं, वो नहीं अभी जो चले गए हैं, और डॉक्टर घटना भी है। और ऐसा है कि 20% हमारी भारतीय स्टूडेंट्स हैं, साउथ एशियन भारतीय स्टूडेंट हैं। हिंदी यहाँ तो जरूर सीखने के लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा व्यापार करने के लिए न्यू जर्सी से अगर आप भारत से व्यापार करने चाहेंगे तो व्यापारी भाषा है हिंदी। तो इंग्लिश तो है, इंग्लिश तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय संस्कार और संस्कृति जानना है, सीखना है, तो हिंदी भाषा की बहुत जरूरत है। तो ऐसा है कि मेरी एक दोस्त है, एक डॉक्टर साहब है, उनकी माँ को मैंने कहा कि अगर वो ड्राइवर्स मैनुअल है, न्यू जर्सी ड्राइवर्स मैनुअल, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें। उन्होंने किया है। मैंने बहुत कोशिश किया कि स्टेट का वेबसाइट में लिंक लगाने के लिए, नहीं उसे नहीं मिला, लेकिन वो अशोक ओझा साहब से मैं कहता हूं कि है, वो अवेलेबल है। ड्राइवर्स मैनुअल, न्यू जर्सी ड्राइवर्स मैनुअल हिंदी में है, बहुत अच्छे, वो लोग यूपी से हैं, बहुत अच्छे हिंदी में लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। और दूसरा ये है कि एक एक्टफल है, एक्टफल में भी हिंदी भाषा को, ये तो फॉरेन लैंग्वेजेस का एसोसिएशन है अमेरिका में, तो उसमें हिंदी को भी एक पार्ट बनाना चाहिए। वो स्टार्ट टॉक प्रोग्राम के बारे में हम लोग सीख लेंगे, और
तो ऐसा है कि वो साथी के बारे में प्रोफेसर अगुस्का ने बात किया था। साथी ऐसा है कि हम लोग, मैंने एक फाउंडिंग मेंबर हूँ। ऐसा है कि साउथ एशियन हेल्थ इनिशिएटिव, वो लोग कहते हैं हम लोगों के लिए कुछ कैची फ्रेज चाहिए। मैंने कहा कि ये टी लगाना, साउथ एशियन टोटल हेल्थ इनिशिएटिव, तो साथी बन जाएगी। तो ऐसा वो एकदम 6-7 साल से वो आगे बढ़ी है। परसों उनका ये है मेंटल हेल्थ के बारे में एक प्रोग्राम हुआ था। तो ऐसा है कि ये 3 दिन है, तो जब भी कोशिश कीजिए, जरूर आइए, सीख लीजिए हिंदी के बारे में जो भी है। कभी आते हैं, कुछ भी कवित्वा सुनाएंगे। तो मुझे ऐसा है कि जो भी किया, जब आप पूजा करते हैं उसके अंत में ऐसा करते हैं, क्रियाहीनम भक्तिहीनम मंत्रहीनम कहते हैं। मैं कहता हूं कि भाषाहीनम। मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने मित्र श्री विकास नांगिया जी को अनुरोध करूंगा कि वे आएं और समापन की तरफ ले चलें। और उसके बाद कुछ संदेश हैं आप सबके लिए, तो उसके लिए मैं पुनः उपस्थित होऊंगा थोड़ी देर के लिए। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी और उपेंद्र जी, यरला गढ़ा जी और प्रोफेसर गंभीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छी बातें रही आपकी ओर से। कारवां आगे बढ़ाएंगे एक और नृत्य शैली, भारत की नृत्य शैली को प्रस्तुत करते हुए। मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हृदिका नागर को, जो उड़ीसी नृत्य प्रस्तुत करेंगी। हृदिका जो है सुधामणि डांस एकेडमी की छात्रा है और आपकी जोरदार तालियों में एक बार स्वागत करते हैं, एक बार फिर से हृदिका नागर का।
बहुत बहुत शुक्रिया हृदिका, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी ओर से। मित्रों, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए और उसकी खास वजह यह है कि यदि हम चाहते हैं कि ये पीढ़ी जो है हिंदी सीखे तो उनके लिए उनका प्रोत्साहन, उनका मनोबल, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम तालियों से उनका जो है मनोबल बनाए रखें और उनको ये विश्वास दिलाएं कि आप जिस खूबी से नृत्य कर रहे हैं उस खूबी से हिंदी भी सीखें और भारत को जो है गौरवान्वित करें। मित्रों, आज का जो कार्यक्रम रहा है हिंदी पर तो बातचीत होती ही रही है, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग नृत्य शैलियों द्वारा काफी भारत की विविधता को दर्शाता रहा है। शुरुआत गणेश वंदना से, भरतनाट्यम से हुई, कथक नृत्य देखा हमने, उड़ीसी नृत्य अभी देख के हटे हम। इससे पहले के मैं मंच पर कौंसल जनरल ज्ञानेश्वर मूले जी को आमंत्रित करूं, मैं अब भारत का एक लोकप्रिय डांस फॉर्म जो है जिसके बारे में प्रोफेसर गर्नर ने भी बात करी थी कि बॉलीवुड की बात करी थी, क्योंकि जो आज के बच्चे, आज का युवा वर्ग है वो हिंदी को जो अपना रहा है वो बॉलीवुड के माध्यम से ही अपना रहा है, बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है। मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नवरंग डांस अकेडमी के स्टूडेंट्स को।
वे प्रस्तुत करने वाले हैं शोकेस इंडिया, भारत की सुंदर छवि दर्शाने वाले हैं बॉलीवुड के नजरिए से। और इस डांस परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ किया है वर्षा नायक और तन्मय मूले ने। आइए, फिर वही तालियां आपकी बहुत जरूरी हैं। लगे तेरी होली में तू मेरा। तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से न खेलूं ऐसे होली में ना तेरा। किसी का तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं। खुले ख्वाबों में जीते हैं बाहरे। मन के धागे ओ मन के धागे, धागे पे सावरे, धागे पे सावरे है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा।
जैसे डोरे डाले काला जादू नैना काले तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले मैं तेरा ओ दोनों धीमे धीमे जले आजा दोनों ऐसे मिले जमीन पे लागे ना तेरे ना मेरे पाँव रे आप सबकी हौसला अफजाई बड़े थे, लेकिन तालियां तो होनी चाहिए उनके लिए भाई, क्योंकि यही तो माता पिता हैं जो अपने बच्चों को आगे हिंदी ध्यान देने वाले हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भारतीय से श्री शंभू अमिताभ जी को, वाइस काउंसिल को, कि वो मंच पर आएं और स्वयं जो है हमारे काउंसिल जनरल का मंच पर स्वागत करें। मैं पहले स्वागत करना चाहूंगा मंच पर वाइस काउंसिल शंभू अमिताभ जी का। धन्यवाद। धन्यवाद भारतीय कौंसुल आवास का, धन्यवाद हिंदी संगम का, धन्यवाद रटगर्स विश्वविद्यालय का और धन्यवाद सभी हिंदी प्रेमियों का। थैंक्स टू इंडियन कॉन्सुलेट, थैंक्स टू हिंदी संगम, थैंक्स टू रटगर्स यूनिवर्सिटी एंड थैंक्स टू ऑल हिंदी प्रेमी, हिंदी लवर्स. I am not naming each and everyone because all are Hindi premi here. सबसे पहले मैं अर्ज करता हूं, कहकशां के आगे की जो बुलंदी है, कहकशां आकाश गंगा, कहकशां के आगे की जो बुलंदी है वो मंजिले मकसूद ही तेरा मकाम है. ये कदम अनगिनत तारों को छुएंगे, तेरी जिंदा दिली को यही पैगाम है. ये पैगाम है हिंदी के लिए और ये पैगाम है न्यूयॉर्क से, डॉक्टर विजय मेहता के शब्दों में. ये उनकी लाइन है, क्योंकि हिंदी अब भारत की भाषा नहीं रही, अब ये विश्व भाषा है. एक बार मैं आप सबों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे यह सम्मान दिया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करूं जिन्होंने 1983 में भारतीय विदेश सेवा की नौकरी शुरू की. इसके उपरांत टोक्यो, मॉस्को और पोर्ट लुइस स्थित मिशनों में इन्होंने योगदान दिया. मालदीव में भारत के उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर रहने के बाद वर्तमान में ये विश्व के व्यावसायिक केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित भारतीय कौंसुलावास के प्रधान कौंसुल जनरल है. आज इनके अभूतपूर्व कार्यों की लंबी फहरिस्त है. सीजी साहब बोलने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं रुक सकता. न्यूयॉर्क कौंसुलावास को स्वच्छतम कौंसुलावास का दर्जा दिलवाना, कार्यालय के कार्यों में प्रगति, सांस्कृतिक व्यावसायिक कार्यों को प्रोत्साहन इत्यादि इनकी उपलब्धियां हैं.
और ये हैं हमारे कौंसल जनरल एम्बेसडर ज्ञानेश्वर एम मूले। आप इनका स्वागत करें सर। एक मिनट मैं और लेना चाहूंगा सर, अगर आप इजाजत दें। ये जो मैंने आपको बताया वो सारी की व्यावसायिक प्रतिभा थी, लेकिन हर किसी की व्यावसायिक प्रतिभा के साथ कुछ वैयक्तिक जिंदगी के भी अंश होते हैं। इनको 3 भागों में आप बांट सकते हैं, सामाजिक या जिनको पारस्परिक संबंध कहते हैं, साहित्यिक या व्यक्तिगत रुचि पर्सनल इंटरेस्ट, और तीसरा तो कार्यालय प्रतिभा है ही। मैं इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इनके व्यक्तिगत पारस्परिक संबंध के बारे में जो मैंने अनुभव किया, काश कोई इस तरह भी वाकिफ हो मेरी जिंदगी से कि मैं बारिश में भी रोऊं और वो मेरे आंसू पढ़ ले। ये इनकी खासियत है, आपके हर सुख दुख के साथी। इनकी कविताएं हिंदी मराठी में हैं और अनुवाद भी हुए हैं विभिन्न भाषाओं में। अर्ज है डॉक्टर मेहता की पंक्तियां इस संदर्भ में, इनके गीतों में वह बुलंदी है सारा महफिल ही हिल जाता है, और यदि दरवाजा बंद न हो तो सारा मोहल्ला ही जग जाता है। चलिए बस अब बहुत हो गया। एक वानगी इनके कवि सम्मेलन के दौरान, इसकी वानगी कवि सम्मेलन के दौरान मैं दूंगा। अंत में जो मैंने महसूस किया इनके ऑफिस के कार्य के बारे में, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। मुझे लग रहा है कि मेरे भाषण से पहले ही पर्दा ना गिरे। लेकिन आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिवादन और आप लोगों का बहुत स्वागत है। कुछ लोगों का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। हमारे जोआना जी मुझे दिख नहीं रही है, जिम भी चले गए हैं, और यहाँ इतने सारे दिग्गज है जो अलग अलग दिशाओं से आए हैं, अलग अलग देशों से आए हुए हैं। चिवकुला जी है, जयरामन साहब नहीं है लेकिन उनके प्रतिनिधि है यहाँ पर, नवीन जी है डॉक्टर, और सबसे बड़ा जो शंभू जी ने कहा कि हिंदी प्रेमी है आप सब लोगों का स्वागत है। काउंसिल जनरल के हैसियत से और एक हिंदी प्रेमी के हैसियत से भी मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि हम 2 साल में दूसरी बार जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। तीसरी बार भी करेंगे अगले साल, हर साल करेंगे। इसकी वजह यह है कि अगर हम न्यूयॉर्क में अपनी आवाज नहीं उठाएं तो कहां उठाएं। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 1 साल में गंगा में, जमुना में, पोटोमैक में या हडसन में बहुत पानी बह चुका है। जब हम मिले थे पिछली बार तो भारत में अभी चुनाव होने वाले थे। उसके बाद भारत में चुनाव हुए हैं, एक अभूतपूर्व चुनाव रहे। ऐसे चुनाव जो दुनिया ताज्जुब से देखते रही, और उसमें एक ऐसे प्रधानमंत्री हमने चुने हैं देश के लिए जो भारतीय भाषाओं में हिंदी में बहुत अभिमान रखते हैं, जिनको हिंदी के बारे में बहुत गर्व है। अंतर्राष्ट्रीय परिषदों में और भारत में दोनों जगह वो हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का उपयोग करते हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार जो है अपने बर्ताव से करते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उसके साथ साथ ये हुआ है कि भारत का अपना आत्मविश्वास जो है जागृत हो चुका है। लोगों को लगता है कि अब कुछ नया इस देश में होगा, हम लोग कुछ दुनिया को नया करके दिखाएंगे। ये विश्वास हमारे देश में आज हमको देखने को मिल रहा है। मैं बहुत खुद को गौरवान्वित समझता हूं कि हमारा देश एक नए तरह से अब सोच रहा है और हम सब लोग उसका हिस्सा है। अब हम यहां आ गए, भारत और अमेरिका के संबंध भी जो है एक नए तरीके से आज दिखाई देने लगे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध में एक नया पर्व शुरू हो चुका है। इस पर्व का अनेक पहलू है।
हमारा जो व्यापारी संबंध है वो बहुत अच्छा है, 100 बिलियन से ज्यादा आगे चला गया है। हमारा जो जिसको हम कहते हैं सामरिक संबंध, स्ट्रेटेजिक रिलेशन, वो अब स्ट्रेटेजिक प्लस में चला गया है। भारत जो है अमेरिका से सबसे ज्यादा जो है सुरक्षा विषयक सामग्री जो है वो मंगवाता है, आयात करता है। इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका जो है सुरक्षा का जो सामान है, सामग्री है, उसका भारत में सह उत्पादन करेगा। विद्या के क्षेत्र में आप सब लोगों ने तो भारत के 4 चांद यहां लगाए हैं। भारत के 1 लाख विद्यार्थी इस देश में अभी है। आप जिसको हम डायस्पोरा बोलते हैं, डायस्पोरा ने भारत का नाम बहुत उज्जवल किया है। और हमने देखा कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो प्रधानमंत्री ने भाषण किया, उसका किस तरह से इस देश में स्वागत हुआ है। लेकिन ये जो रथ है, ये जो कारवां है, ये जो यात्रा है, इसको आगे कैसे बढ़ाना, वो हम सब लोगों के सामने की समस्या है। मैं समझता हूं कि एक कुछ हम लोगों में एक शक्ति आ चुकी है, ऊर्जा आ चुकी है, और इसको इस वक्त बहुत जोर लगा के आगे इसको बढ़ाना जरूरी है। लेकिन इसमें काम भी काफी करना पड़ेगा। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, जिसको हम कहते हैं, हर घर में जो महिलाएं हैं, पिताजी है, दादाजी है, दादी है, नाना है, नानी है, उनको जरूर, जैसे डॉक्टर गंभीर ने कहा, कि अपने बच्चों को, पोतों को, नातियों को, सबको हिंदी के बारे में जागरूक करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि जिस देश की भाषा नहीं है उसकी जिह्वा नहीं है। हम कितना भी कहें कि हम अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, भारत में दुनिया का मेरे ख्याल से अब अंग्रेजी बोलने वाली सबसे ज्यादा जनसंख्या शायद हिंदुस्तान में होगी अभी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें अपने संस्कृति का असली रूप से प्रतिनिधित्व करना है तो अपनी भाषाओं में ही होगा। केयुराणी न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, नालंकृता मूर्धजा, वाण्ये का समलम करोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम। वाग्भूषण जो है वो अंतिम भूषण है। वाणी का भूषण जो है उसके आगे कोई भूषण नहीं। तो इस भूषण को, और इसमें एक लाइन भी है कि या संस्कृता धार्यते, भाषा ऐसी होती है जिसके कंधों पर संस्कृति पलती है, बढ़ती है, दुनिया तक पहुंचती है। तो इसलिए इसको समझना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, और मुझे लगता है कि डॉक्टर गंभीर ने जो बात कही उसको वास्तव में गंभीरता से लेना जरूरी। उन्होंने कहा कि हम जो भारतीय है, हमारी ये संस्कृति रही है कि आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, दुनिया से जितनी जितनी अच्छाइयां हैं, नोबल थॉट्स है, वो हमारे तक पहुंचे। ये हमारी संस्कृति है। हम किसी भी भाषा का द्वेष नहीं करते, और इसीलिए हम बहुभाषी है, बहुवांशिक है। हम अलग अलग प्रांतों से है, हमारे परिवेश अलग है, परिधान अलग है, भाषाएं अलग है, तब भी हम भारतीय है। तो हमारे यहाँ तो बहुभाषित्व जो है वो हमारे रगों में है, खून में है, डीएनए में है। तो इसका संवर्धन करना, कम से कम इतना तो हम जरूर कर सकते हैं। न्यू जर्सी में तो भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है, इसके बारे में भी यहाँ जिक्र हो गया। इसके बारे में एक छोटा सा मुझे किसी ने किस्सा बताया, वो मैं बता दूं आपको, कि एक जो है वन मिस्टर स्मिथ केम टू न्यू जर्सी, और वो पूछ रहे थे मिस्टर ब्राउन के बारे में। तो उन्होंने वहां कोई गार्डन में काम कर रहा था, तो बाग में, बगीचे में कुछ काम कर रहा था। उन्होंने उसको पूछा कि डू यू नो वेयर मिस्टर ब्राउन लिव्स। तो उस बंदे ने ऊपर देखा और कहा कि यहां कोई फॉरेनर नहीं रहता। तो हिंदी में उसने कहा कि यहां कोई फॉरेनर नहीं रहता, इतनी बड़ी संख्या में जो है भारतीय लोग यहां रहे। लेकिन ये सिर्फ यहां की बात नहीं है, पूरे अमेरिका में करीबन 3.5 मिलियन, 35 लाख के आसपास, उसमें अवैध कितने हैं उसके अलावा, इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसकी 35 लाख के अलावा और भी लोग रहते हैं। तो 35 लाख जो होते हैं, इसका मतलब है कि 100 अमेरिकन में एक भारतीय छुपा हुआ है यहाँ।
1% इस देश की 1% आबादी जो है वो भारतीय है। तो 1% आबादी अगर 10 लोगों को हर एक को बताएं, हिंदी सिखाएं, अपनी भाषा सिखाएं, तो धीरे धीरे हमारी भाषा का प्रचार प्रसार हो सकता है। हमारे सामने जो रास्ता है वो शायद थोड़ा विकट हो, लेकिन हमारी मंजिल जो है वो बहुत स्पष्ट है। अब मैं समझता हूं कि अभी भारत के लिए ये स्थिति आई हुई है कि 68 साल की स्वतंत्रता के बाद कि नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। अब ऐसी स्थिति आई है कि हमें महत्वाकांक्षा में छुप छुप के कुछ करने की जरूरत नहीं। हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि ये दुनिया की ना सिर्फ सबसे बड़ा गणतंत्र है, लेकिन ये दुनिया से सबसे पुराना भी गणतंत्र है। इसलिए कि यहां हमेशा सब विचारों का, सब धर्मियों का, सब प्रवाहों का संगम जो है हमेशा होता आया है, आज नहीं 5000 साल से। और इसके बारे में हमें कोई, और ये सहिष्णुता जो है वो भी हमारा धर्म है। इसलिए इसको गर्व से करना और लोगों तक ये संदेश मैं समझता हूं कि पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्या है हमारे सामने जो मकसद है, गैब्रिएला जी है वो इसका प्रचार प्रसार कर ही रही है कि हिंदी को सर्वप्रथम जो है हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनानी है, उसको भूलना नहीं चाहिए। छोटी छोटी भाषाएं जो है वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिष्ठित है, लेकिन हिंदी की अभी प्रतिष्ठापना नहीं हुई। सिर्फ एक सभा लेने से, सम्मेलन लेने से संयुक्त राष्ट्र संघ में फर्क नहीं आएगा जब तक हम इसको सातत्य से, सतत रूप से हम इसको चेज ना करें, फॉलो अप ना करें, इसका पीछा ना करें। तो पहली तो 3 मकसद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये है, दूसरे है इसको विश्व भाषा बनाना जरूरी है। विश्व के हर विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाए, इसका हमें प्रबंध करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ेगी हम आप सब लोगों को, क्योंकि ऐसा है कि कल पूरे अमेरिका में भी प्राथमिक शिक्षा अगर हिंदी विषय वहां आ जाए, तब भी किताबें कहां से आएगी, जो पाठ्यक्रम कैसे बनेंगे। तो इसके लिए बहुत काम करना जरूरी है और पूरी दृढ़ता से इसके बारे में काम करना पड़ेगा। और आखिरी जो है, भारत विश्व का तीसरी आर्थिक सत्ता है आज के दिन में, और अर्थस्य पुरुषो दासः। हम सब लोग जो है, अर्थ अगर है तभी भाषा आगे बढ़ती है। सिल्क रोड, स्पाइस रूट और ट्रेडिंग एंड कल्चर, ये सब इकट्ठे हमेशा चलती जाइए। तो इसलिए इसको हमें बहुत बड़े पैमाने पे आर्थिक संबंधों से, व्यापारी संबंधों से, हमारे जो शैक्षिक संबंधों से और अन्य जो सामाजिक क्षेत्र है, मेडिसिन हो, हेल्थ सर्विसेज हो, सांस्कृतिक जो विधाएं हैं, सब तक हिंदी को पहुंचाना जरूरी है, तभी तो ये हो सकता है। लेकिन मुझे इसमें दिक्कत नहीं लगती। आप सब लोगों का मैंने देखा है पिछले साल से, जिस तरह से आपने सब लोगों ने अपना जीवन जो है एक तरह से हिंदी को अर्पित किया है, और वो भी भारत से दूर रह के अर्पित किया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि कुछ लोग भारत की हिंदी नहीं बोलते हैं, अब उसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि वो अपना एक खुद के अंदर का एक भारत जो है, उसको अगर वो छोड़ना चाहते हैं, उसका मर्डर करना चाहते हैं, वो उनकी चॉइस है। लेकिन उससे जो है उनका प्रभाव बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि अंदर जो है सदियों से बसा हुआ भारत जो है, वो भारत को छोड़ेंगे, भारत उनको नहीं छोड़ेगा जहां जाए, क्योंकि इतनी पुरानी सभ्यता है हमारी, इतनी पुरानी संस्कृति है कि उसका प्रभाव जो है हमारे अंदर से आसानी से नहीं जाने वाला। तो भविष्य के लिए हमको और इकट्ठे होके और एकजुट होके काम करना पड़ेगा। यहाँ ओझा जी ने, आप सब लोगों ने, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कि अगला जो सम्मेलन है अलग विश्वविद्यालय में हो,
पिछले साल NYU ने किया था, इस साल यहाँ हुआ। लेकिन ऐसे छोटे छोटे सम्मेलन भी और जगह होने चाहिए, और यहाँ की अगर परंपरा यहाँ चलती रहे तो बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग जो है अपना अपना योगदान इसमें कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि 3-4 जो घटक है उनको हमें और आक्रामक तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, उनकी तरफ जाना पड़ेगा। एक जो यहाँ इस देश की सबसे बड़ा एक सेक्शन है, वॉल स्ट्रीट बोलते हैं उसको, वहां हमें देखना चाहिए, आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए कि किस तरह हम वहां के लोगों को अप्रोच हो सकते हैं हिंदी में, क्योंकि बहुत सारी भारतीय कंपनियां यहाँ रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे है। बाकी जो प्रमुख कंपनियां हैं यहाँ, उनमें भारतीय लोग इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। आज आप जो देखते हैं कि सत्या नडेला हो या मिस्टर इंदिरा नूई हो या और अन्य लोग हैं, आज कुछ गिने चुने लोग हैं आज। लेकिन मैं जब इन कार्यालयों में जाता हूं तो देखता हूं कि सेकंड रंग और थर्ड रंग के जितने अधिकारी हैं, बहुत बड़े पैमाने में वहां भारतीय दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि आज से 10 साल में अनेक CEOs जो है आपको भारत मूल के लोग दिखेंगे। लेकिन इनकी बात यह है, विशेषता यह है कि इन लोगों ने धीरे धीरे हिंदी, संस्कृत, अपनी मातृभाषा, चाहे वो तेलुगु हो या मराठी हो, उसको छोड़ के आगे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने भारतीयत्व छोड़ दिया है, लेकिन उनको अपने रोजमर्रा के जीवन में इन भाषाओं का कोई स्थान महसूस नहीं होता। लेकिन उनको जब लगेगा कि 1.2 बिलियन जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार जो है आपके लिए उपलब्ध है, और आप गांव जाएंगे तो ना आपकी अंग्रेजी चलेगी, ना ही फ्रेंच चलेगी, ना डच चलेगी वहां। तो 16वीं सदी में 17 चलता था, 15वीं सदी में चली। लेकिन आज के दिन में वहां की स्थानीय भाषा या तो हिंदी अब जो है भारत के सुदूर गांवों में भी हिंदी सब लोग समझते हैं, चाहे बोल नहीं सकते हैं अच्छे से, लेकिन समझते हैं। मेरी माँ जो है मेरे पत्नी से हिंदी में बात नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ और ना हमेशा बोल सकती है। मतलब यही तो जिंदगी में होता है ना, हाँ या ना ही तो बोलना पड़ता है। तो उसकी वजह जो है वो हिंदी सीरियल देखती है, हिंदी न्यूज देखती है, गांव में बैठ के, घर में बैठ के मेरे। तो इस तरह के हजारों हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, भाई है, सब सुदूर प्रांतों में और गांवों में फैले हुए, वहां सब हिंदी बोलने लगे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रांतों को जोड़ने वाली एक भाषा, हमारी जो भाषा है वो होनी चाहिए। और हम किसी आढ़्यता से या एरोगेंस से अपनी भाषा का प्रचार प्रसार हमें ना करने की जरूरत है। ना भारतीय लोग जो है इस तरह से आढ़्यता से दुनिया को पेश आते हैं, क्योंकि हमारा विश्व बंधुत्व की जो संकल्पना है वो बहुत पुरानी है। तो चलिए, मैं समझता हूं कि आप मेरे जैसे आपको भी भूख लगी होगी, और भूख की कोई भाषा नहीं होती, हर भाषा में भूख लगती है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप जो दूर दूर देशों से आए हैं, दूर प्रांतों से आए हैं, सबका आप स्वागत करता हूं। विशेष तौर पे रटगर यूनिवर्सिटी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय विद्या भवन, भारतीय बैंक, भारतीय एयर इंडिया और अन्य जिन जिन संस्थाओं ने इसमें सहयोग दिया है, सबका मैं आभार मानता हूं। और आशा व्यक्त करता हूं कि इससे दुगुने रूप से या तिगुने रूप से हम अगले साल ये सम्मेलन यहाँ पर संपन्न करें। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन हो चुका है। धन्यवाद और नमस्कार। जय। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेश्वर मूले जी, काउंसिल जनरल मूले साहब। मैं आपको इस बात का
बिल्कुल सही कहा आपने कि भाषा जो है हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है, हमारी अस्मिता है और उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए और हिंदी को जो है व्यवहार, व्यापार और व्यवसाय में लाना चाहिए और विश्वविद्यालयों में ले जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात आपकी तरफ से और इसका मेरे ख्याल से अगले 2 दिन जो है इसी बात के ऊपर ही चिंतन और इसी बात के ऊपर बातचीत होगी कि किस तरह से इस और आगे बढ़ा जाए। कार्यक्रम के आखिरी पहर में हम आ चुके हैं। सीजी साहब ने, काउंसिल जनरल साहब ने कहा कि उद्घाटन हो चला है, तो बड़े हर्ष उल्लास का अवसर है। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि टीवी एशिया का रटगर्स यूनिवर्सिटी, भारतीय कौंसिल आवास और मैं देख रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, सबका साथ मिला है इसको संभव करने के लिए। टीवी एशिया के चेयरमैन एंड सीईओ HR शाह जी की ओर से मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर जो हो रहा है, आज मैं देख रहा हूं कुल 200 या 200 से अधिक लोग बाग है यहां पे, लेकिन ये हिंदी का प्रचार जो है मात्र यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। हम अपने माध्यम से प्रसार करके उसको संपूर्ण नॉर्थ अमेरिका तक ले जाएंगे और हो सका तो हिंदुस्तान तक ले जाएंगे और ये प्रयास रहेगा कि भारतीय सरकार को इस बात का आभास हो कि अमेरिका में रटगर्स यूनिवर्सिटी के प्रांगण में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन आयोजित हो रहा है और बढ़ चढ़ करके हो रहा है। अब मंच पर स्वागत करते हैं इन नन्हे बच्चों का, क्योंकि यही है जो हिंदी को आगे ले जाएंगे। नीचे आएंगे तो नीचे आओ, नीचे आओ, ठीक है? मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम जालसाज, हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी,
प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के दिनों से चल बनाए आशियां इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के दिनों से चल बनाए आशियां दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे कंघी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के दिनों से चल बनाए आशियां ना हो चार दीवारें फिर भी झरोखे खुले बादलों के हो पर्दे शाखे हरे पंख झले ना हो कोई तकरारे हर मस्ती कहा के चले प्यार के से महीने का खर्चा चले दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे कंघी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के दिनों से चल बनाए आशियां इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के इनको से चल बनाए आशिया क्या लगता है कि बच्चे हिंदी सीखने के लिए भी तैयार है कि नहीं? जब इतनी अच्छी प्रतिभा इतने अच्छे कॉन्फिडेंस से जो है आपके सामने बॉलीवुड के गीतों पर हिंदी को दर्शा सकते हैं अभिनय के रूप में तो नृत्य के रूप में तो जाहिर है कि सीख भी सकते हैं। मित्रों, अब मैं वापस एक बार फिर से अशोक ओझा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ आज के कार्यक्रम को संपन्न करें और फिर कल सुबह हम सब मिलेंगे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के लिए। अशोक ओझा जी। धन्यवाद मित्रों, मैं सिर्फ यह कहने आया हूं कि आप सबने यहाँ अपनी शाम बिताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 2 दिनों में हम और भी अनेक व्यक्तियों का धन्यवाद करेंगे और कल सुबह 8:30 बजे आप कॉलेज एवेन्यू के स्टूडेंट सेंटर पे आ जाएं, वहाँ पर हमारा पहला सत्र प्रारंभ होगा। और इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले भोजन के लिए हमारे जो मुख्य अतिथि लोग हैं उनको भोजन कर लेने दें, क्योंकि उन्हें भी जाना है। तो हमारी उषा जी, हमारी सचिव उषा जी हैं, कृपया आप कहाँ हैं उषा जी? मोदी जी हमारे युवा हिंदी संस्थान के, आप कृपया ले चलिए हमारे अतिथियों को। आप लोग बैठे रहें और वहां पर हम चाहते हैं पंक्तिबद्ध होकर एक अच्छे नागरिक की तरह हम लोग धीरे धीरे एक एक करके भोजन ग्रहण करें। और
आप सबका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि कल आप सब लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।